آج میں آپ کے لیے سورہ فاتحہ کا موکل والا عمل لے کر آیا ہوں۔ اس کے قبل میں نے ایک ویڈیو سورہ فاتحہ پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، اس میں ڈیٹیل ہے۔ اس میں اسی کے ایک خاص حصے صرف موکل والے عمل کا ذکر کروں گا، اور یہ موکل کیا کرے گا؟ یہ انسانوں کے بیماری کو ٹھیک کرے گا۔ کیسوں لا علاج مرض ہے، اس کو صرف کہہ دینے سے یا ہاتھ پھیر دینے سے یا یہ کہہ دینے سے کہ اللہ کے حکم سے یہ مرض ٹھیک ہو جائے، اس انسان کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے، یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بول دیں کہ اس کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے عملیاتی لائن کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو علم ملا تھا اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بہت بڑا علم ملا تھا، اس کا یہ ایک ٹکڑا ہے، یعنی اس سے صرف آپ بیمار کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب وہ بیمار چاہے بیماری کے شکل میں ہو، چاہے جادو ٹونا شیطانی حرکت کی شکل میں ہو، صرف جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا تو ٹھیک ہو جاتا تھا، اسی طرح سے آپ کو بھی جب یہ عمل میں کامیابی مل جائے گی تو آپ بولیں گے اور مرض ٹھیک ہو جائے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو چلیے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے میں اپنا چھوٹا سا تعارف آپ کو کرا دوں۔ میں عامل بابا انڈیا کے بہار اسٹیٹ سے ہوں، اور بہار اسٹیٹ میں ایک مظفر پور ضلع ہے، میں اسی ضلع میں رہتا ہوں، میں وہیں سے ہوں۔ میں نے 2001 سے اس لائن میں قدم رکھا تھا، آج 22-23 سال ہو چکے ہیں۔ 120 سے زیادہ میں نے چلے وظائف عملیات وغیرہ کیے، اور بہت سارے عملیات میں ناکامیابی بھی ملی ہے۔ لگ بھگ 19-20 عمل تو میرا یوں ہی فیل ہو گیا ہے، جس میں کچھ نہیں ہوا، اور آج 150 سے زیادہ روحانی لشکر اللہ کے حکم سے میرے پاس ہے، جو میرا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو کچھ اس میں بتاؤں گا وہ صرف اور صرف اپنے تجربے کی بنا پہ بتاؤں گا۔ میرا بتایا ہوا عمل اور علم میرے بتانے سے پہلے آپ کو کوئی کتاب میں نہیں ملے گی، نہ کسی ویڈیو میں ملے گی۔ اس بات کا پشٹی کرنا ہے، یعنی اس کو اگر صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیو کا ڈیٹ تاریخ اپلوڈ کا آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کو ملے اسی طرح کا علم تو یہ دیکھیے کہ وہ کب اپلوڈ کیا ہے یا کب وہ کتاب لکھا ہے، تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ جب تک وہ اس چیز کو صحیح ثابت نہ کرے، یعنی کوئی بھی علم جب تک اس پہ عمل نہ کرے تب تک کسی کو نہیں بتائے، کیونکہ تب تک اس پر اس کا ادھیکار نہیں ہوتا۔ تب تک اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ غلط چیزوں کو فارورڈ کر رہا ہے۔ اسی سے دنیا میں اوشواس، شک بڑھتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یقین کسی کو نہیں ہوتا ہے، بس بات کو وہ فارورڈ کرتا رہتا ہے۔ آج کیا ہے، مولوی مولانا علم تو اچھا خاصا حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، رٹنے والے قرآن اور حدیث کو رٹ جاتے ہیں، وہ بتا دیں گے کہاں کیا مسئلہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں حدیث کا پنہ تک رٹ جاتے ہیں، لیکن اس میں جو واقعات دی ہوئی ہے اور اس میں جو باتیں ہیں اس پر وہ کبھی غور و فکر نہیں کرتا ہے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اسی لیے وہ مولوی مولانا ان پنڈتوں کی طرح ہو جاتا ہے جو کچھ پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں کو حق بات نہیں بتاتے ہیں۔
बल्कि हक बात उनको लगता है कि हक बात बता देंगे तो वो लोग उनकी इज्जत छोड़ देंगे, उनको जो पैसा देते हैं वो पैसा देना बंद कर देंगे। ये सब उनको सताने लगता है, रोजी रोटी का डर सताने लगता है। तो हरगिज हरगिज ऐसा नहीं करे, बल्कि जो इल्म आप कहीं से सीखें पहले उस पर अमल करें, उसको सही साबित करें, जिंदगी में उतारें और तब जाके उसको आगे बढ़ाएं। मेरे दोस्त, जो इल्म मैं आपको बता रहा हूं उसका कुछ हिस्सा तो आज के मैंने 20 साल पहले मैं सही साबित कर चुका हूं, अपनी जिंदगी में उतार चुका हूं, कुछ 15 साल पहले, कोई 10 साल पहले और कोई 7 साल पहले। ठीक है, लगभग आज से 7 साल पहले मैं रूहानी लाइन का तमाम इल्म जो मुझे संतुष्ट कर सकता था, मुझे मुतमईन कर सकता था, जो मेरी तलब थी, मैं वो सब हासिल कर चुका अल्लाह के फजल से। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं, अब मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो कुछ भी सही साबित नहीं करता है, बस कहीं से सुना और वीडियो बना दिया। उनको व्यूज चाहिए, उनको नाम चाहिए, उनको पैसा चाहिए। कहीं से कुछ सुना, किसी को बता दिया, बल्कि उसको सही साबित भी नहीं किया। कुरान की वो आयत कि ऐ लोगों, तुम वो बातें क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते हो। इस पे मैं लगभग 22-23 साल से अमल पैरा हूं। यही वजह है कि मैं बहुत सी, यानी मैं अगर इतना जानता हूं तो मैं इतना सा बताता हूं। और यहां लोग ये हैं कि जानते इतना है मगर बताते इतना है, तो दुनिया में गुमराही फैलती है इससे। अगर चाहते हैं कि अल्लाह का सही बंदा बने, हक परस्त बने, कामयाब बंदा बने, तो आप पहले अपनी जिंदगी को संवारिए, पहले खुद सुधारिए, तब दूसरों को सुधारने की कोशिश कीजिए। यहां हर कोई दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है, अपनी फिक्र नहीं करता है, खासतौर से सुधारने के मामले में। पैसा कमाने के मामले में वो खुद पहल करेगा, पैसा उसको खुद चाहिए। बाकी नेक बनना है और कोई अच्छा काम करना है तो दूसरा पहले करे, बाद में हम करेंगे। यही मेंटलिटी दुनिया के लोगों की बन चुकी है। नहीं मेरे भाई, अगर सही रास्ते पे चलना है तो याद रखिए, पहले खुद से शुरू कीजिए। चलिए, तो मैं सूरह फातिहा का ये अमल उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अपने कल्ब को अल्लाह का जाकिर बना चुका है और रूहानी सफर कर चुका है, और ख्वाब में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अल्लाह से बातचीत हो जाती है, या उसके करीब तर पहुंच चुका है। ये वो खुद समझ रहा है, किसी दूसरे के सबूत की जरूरत नहीं है। ये बात को अगर वो खुद समझ रहा है, तब उसको चमत्कार चाहिए, कोई ऐसी निशानी चाहिए जिससे उसका ईमान भी बढ़े और दूसरे लोगों का भी ईमान बढ़े, दूसरे लोगों का भी फायदा हो। उसके लिए ये अमल है। इससे मेनली ये अमल मरीज को ठीक करना है, बीमार को ठीक करना है, चाहे बीमारी कुछ भी हो, लाइलाज बीमारी हो, वो सब ठीक हो जाएगा। बस इसका जो आमिल है वो जबान से सिर्फ कहेगा कि अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाए या इसका ये बीमारी ठीक हो जाए, हो जाएगा। मगर यहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि जो अमल अमलियात सब मैं बता चुका हूं, पहले वो सबको कर डाले, अपने कल्ब को अल्लाह का जाकिर बना ले और अपने नफ्स से वो सब गंदगी को दूर कर दे, हसद को, जलन को, दूसरे की गीबत को, दूसरे बदगुमानी को, दूसरे के बारे में बुरा सोचने को, तकब्बुर को, अपने आप को ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट समझने को, ये सब जो बुराई है, रूहानी बुराई है, ये सब को जब तर्क कर दे बंदा,
तब जाके और अल्लाह का कल्ब अल्लाह का जिक्र जो है उसके कल्ब में जब दाखिल हो जाए, उसके ज़बान पर दाखिल हो जाए और इस चीज़ को कम से कम 1 साल गुजर जाए, तब जाके ये अमल करने का है। उसके पहले दोस्तों अगर करोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद जब फर्क नहीं पड़ेगा तो आप खुद छोड़ दोगे, नाउम्मीद हो जाओगे। और जब ये सब चीज कर लोगे तो फायदा यह होगा कि आपको मेरी बात पे विश्वास होगा और अल्लाह की तरफ से आपको वो चीजें जो आपके को फायदा पहुंचाने वाली है उस पे आपका दिल दिमाग डिटरमाइंड हो जाएगा, यानी टिक जाएगा उसी पर, उस पे अटूट विश्वास हो जाएगा। यह अल्लाह की तरफ से आपको गाइडलाइन मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपका दिल पाक हो जाएगा रूहानी बीमारियों से, उसके पहले नहीं होगा। चाहे मैं जितना इल्म बता दूं, इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को होगा जो इसका हकदार होगा, जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह की तलब होगी, जो सच्चा तालिब होगा। जो छलिया है ना, जो कपट वाला है वो नमाज भी पढ़ लेता है ना, बकवास भी कर लेता है, बड़ी बड़ी बातें भी बोल लेता है, लेकिन दिल में हमेशा छल कपट गंदगी रहती है, ऐसे लोगों को मेरे किसी भी अमल से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे अमल से फायदा उठाना है तो जो शर्त मैंने बताया है पहले उसको पूरा करना पड़ेगा। चलिए, अगर आप ये शर्त पूरा कर चुके हैं और अब आपको कोई चमत्कार अभी मिला नहीं है, मिलता अचानक चमत्कार नहीं मिलता है मेरे भाई, है ना। सब चीज कुछ ना कुछ वजह से होती है, कुछ ना कुछ तरीके को फॉलो करने से होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह का जाकिरीन हो गया, अल्लाह उसको कबूल कर लिया तो अचानक उसको चमत्कार मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रूहानी लाइन में भी सब कुछ सिस्टम से होता है। वो अलग बात है कि बहुत सारे बुजुर्गों ने सिस्टम सिर्फ अपने खास मुरीद को बताया, खास चेले को बताया जिसको देना था, बाकी लोगों को या किताबों में इस चीज का जिक्र नहीं किया। यही वजह है कि लोग ये समझते हैं कि बस अल्लाह जब बंदे को कबूल कर लेता है तो उसको चमत्कार दे देता है, करामत दे देता है, बस यही समझते हैं। मगर ये जो प्रोसेस है कि अल्लाह खुश कैसे होता है, कब होता है, उसकी साइन क्या है और बंदे को चमत्कार मिलता कैसे है, करामत, ये क्या प्रोसेस है, इसका जिक्र कोई किताब में नहीं मिलेगा। उस प्रोसेस को मैंने ढूंढा है। जब 2009 में जब मैं सारी रूहानी मंजिल तय कर चुका था तो मैंने सोचा कि मेरा करामत कहाँ चला गया, क्योंकि मैं भी ये सोचता था कि जब सब कुछ हो जाता है तो करामत अपने आप मिल जाती है, लेकिन मेरे अंदर तो कोई चमत्कार पैदा करने वाली सिफत नहीं थी। बाकी इल्म, रूहानी सफर सब कुछ कर चुका था। उस वक्त फिर एक नए इल्म की तलाश हुई जिसका सफर समझिए कि वही 17-18 तक पूरा हो गया। चूंकि एग्जैक्ट सन मुझे अभी याद नहीं है, इसलिए 2017-18 तक मैं बता रहा हूँ, या 17 में या 18 में, जो आखिरी इल्म था। बहरहाल, तो मैं इसीलिए आपको प्रोसेस बता रहा हूं। करना ये है, अब तरीका समझिए। फायदा तो आपको समझा दिया मैंने कि कोई भी बीमारी हो, इसका जो आमिल होगा, जो कामयाब होगा, वो मरीज के सिर पर हाथ रख दे या बिना हाथ रखे सिर्फ इशारा कर दे कि अल्लाह के हुक्म से इसका ये मर्ज ठीक हो जाए या सभी मर्ज ठीक हो जाए, तो वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा। उसी वक्त, कोई देर नहीं लगाएगा। बस कहा और इधर ठीक हुआ। जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे और मरीज ठीक हो जाता था। अब को किसी को अगर ये वहम और गुमान हो कि ये सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को ही मिल सकता था, किसी और को नहीं मिल सकता है, तो वो गलती पर है। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं बनाया है कि ये इल्म सिर्फ उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ये तो बंदे की तलब के ऊपर है कि बंदा क्या चाहता है। अल्लाह ताला तो इंतजार कर रहा है कि कौन बंदा है जो हम तक पहुंचता है कोशिश करके और आता है। उसी से तो अल्लाह ताला को खुशी मिलती है।
बाकी तो दुनिया में ज्यादातर बंदे तो जानवर की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि जैसे जानवर सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता है, उसी तरह से वो इंसान भागता है। उस इंसान को इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, ना अल्लाह से उसको मतलब है, ना रसूल से मतलब है, ना क़यामत से मतलब है, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मतलब है। तो चलिए मेरे दोस्त, ये चीज, ये इल्म हासिल करने के लिए जरूरी है कि ये आपका आखिरी अमल होना चाहिए। यानी इसके बाद आप कोई अमल करेंगे कि नहीं वो बात का मामला है, लेकिन इसको आखिरी अमल मान के चलेंगे, क्योंकि इसमें लगेगा आपको बहुत ज्यादा वक्त। मान के चलिए आपको इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का वक्त लग सकता है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन अब ये बात आप समझिए कि जो इल्म अगर आपको मिल रहा है उसकी कीमत क्या है, कदर क्या है। एक एमबीबीएस होने में 7 साल 8 साल लगता है, पूरा प्रैक्टिकल करते करते जो है लगता है। उसके बाद भी वो पक्का डॉक्टर नहीं होता है, बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करेगा तब जाके होगा। उसके बाद भी वो डॉक्टर हर मर्ज को, हर बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर 6 महीना लगा या साल भर लगा या 2 साल लगा, ठीक, फिर भी एमबीबीएस से आपको कम वक्त लगा, बहुत कम वक्त लगा। उसके अलावा आपको पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? एक एमबीबीएस करने में उसको डेली 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, इम्तहान देना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, और यहाँ आपको 1 घंटा का वक्त देना है पढ़ाई करने में। और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको वो मकाम आ जाएगा जो दुनिया में आप हर मर्ज को ठीक कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि एक तो फायदा हुआ मरीज का कि उसका मर्ज ठीक हो गया, और दूसरा फायदा ये होगा कि उसका भी ईमान बढ़ेगा, अल्लाह पे भरोसा बढ़ेगा, अल्लाह के कलाम पे भरोसा बढ़ेगा, और आपका भी यकीन बढ़ेगा, आपकी खुशियां बढ़ेगी, आपका नेकी बढ़ेगा, आपका ईमान बढ़ेगा। इतने सारे फायदे हैं दुनिया में। आपको देखकर बहुत से लोग ईमान लाएंगे, उनको समझ में आएगा कि हाँ रियल में अल्लाह है, अल्लाह की पावर है, अल्लाह को वो आपके अंदर वो अल्लाह के नूर को, अल्लाह के जलवों को वो देखेगा। तो इसके बारे में आप सोचिए। जब तक आप इसका फायदा नहीं समझेंगे कि इससे आपको मिलेगा क्या, तब तक आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये तो समझ में आपको आ गया कि फायदा क्या मिलेगा। अब चलिए तरीका समझते हैं। पढ़ना है सूरह फातिहा 100 बार, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। 100 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, और 500 बार पढ़नी है या अल्लाहो, या अलीमो, या हकीमो, या समीओ, या बसीरो। ये 5 नाम है, इसको 500 बार पढ़ लेना है। उसके बाद दुआ करनी है हाथ उठाकर कि अल्लाह मुझे ऐसी इल्म अता फरमाइए कि मैं इंसानों के हर मर्ज को सिर्फ आपके हुक्म से फौरन ठीक कर सकूं, बिना किसी दवा के। इस बात को 10 बार दोहराइए। अभी मैंने जो कहा इसको लिख लीजिएगा और इसको 10 बार दोहराइएगा। ठीक है, देखिए कोई भी जो इस लाइन का है, पहुंचा हुआ है, वो इतना खोल खोल कर, इतना जाहिर करके नहीं बताएगा, और खास तौर से अपने तजुर्बे किए हुए चीज को तो और जल्दी नहीं बताता है, इधर उधर की चीज, गोल मटोल चीज को बताता है। मगर ये जो मैं बता रहा हूं ये मेरा प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे और आपका अमल पूरा हो गया। इस तरह से आपको पढ़ते जाना है। ये मान के चलिए कि 6 महीना से लेके 2 साल तक पढ़ाई करनी है। ठीक है,
देखिए अमल में कामयाबी मिल जाएगी, तब भी पढ़ाई करते रहना है, अमल का यही तरीका होता है ना। और फिर उसके बाद अब रही बात की तादाद उसका कम बेश करने का, ठीक है। तो जब आपका अमल कामयाब हो जाएगा तो जो रूहानी पावर आएगा आप उसी से पूछ लेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपको अब उतनी ही बार पढ़ना है या उसको कुछ कम कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो रूहानी पावर आपके पास आएगी उसकी बात अल्लाह ताला से होती है, बातचीत। जब आप बोलेंगे तो पूछ के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ज्यादातर मामले में पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। अब रही बात कि कैसे पता चलेगा कि अमल कामयाब हो गया। देखिए जब अमल कामयाब होगा तो आपके पास एक रोशनी नूर माने आएगा और फिर उसके बाद वो इंसान की शक्ल इख्तियार करेगा या डायरेक्ट वो इंसान की शक्ल में ही आपके पास आ जाएगा और फिर वो आपको से हम कलाम होगा, बात करेगा, कहेगा कि अल्लाह का हुक्म हो चुका है, आप जो कहेंगे सो मैं करूंगा। लेकिन जो कहेंगे सो करूंगा का मतलब ये नहीं कि अभी आप कहेंगे कि पैसा ला के दो तो पैसा ला के देगा, नहीं देगा वो। आप जिस चीज के लिए दुआ पढ़े हैं, जो अमल किया है, वही हुक्म अल्लाह का वो लेके आया है। क्योंकि मैंने ऐसा ट्रायल किया था कि उसने कहा कि मैंने पूछा तो उसने कहा कि अल्लाह ने भेजा है जो आपके हर हुक्म आपका मानने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो आप सोना ला के दे सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस तरह से जो जिस चीज के लिए आप दुआ मांगे हैं वही चीज के लिए वो करेगा। तो वो आपकी बातचीत भी उससे होने लगेगी, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन याद रखिए कि वो फरिश्ता होगा, है ना, वो जीन में से नहीं होगा। ये मैंने क्लियर कर दिया है, इतना तक क्लियर कर दिया है कि अगर कोई बिल्कुल नासमझ इंसान है ना, ख्याली पुलाव सिर्फ पकाता है, उसको सवाल करने नहीं आता है सही तरीके से, है ना, सही जवाब ढूंढने नहीं आता है, उसके लिए मैं सब चीज खोल खोल के बता दे रहा हूं। क्योंकि याद रखिए कि बेवकूफ सिर्फ आम इंसान नहीं होते हैं, खास इंसानों में भी बेवकूफ़ी पूरी तरह से झलकती है। बस कुछ चीज़ों में वो खास होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अल्लाह की इबादत किया और अल्लाह को राज़ी कर लिया, तो आप उसमें आप खास हो गए। लेकिन कुछ मामलों में बेवकूफ़ हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपकी बेवकूफ़ी को दूर कर दे और होशमंदी और अक्लमंदी आपको अता फरमाए, हमको भी अता फरमाए। तो इस तरह से ये सूरह फातिहा का जो अमल है, आप मैंने समझता हूँ कि पूरा तरीका मैंने बता दिया है। हाँ, ये अमल जब भी करे तो किसी तरह का किसी से जिक्र नहीं करे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसका ये फ़ायदा होगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को सीक्रेट रखें, अपने काम से काम रखें, ठीक है। और खाने पीने किसी तरह की और कोई परहेज इस अमल में नहीं है, जलाली जमाली कुछ भी नहीं है। बस सच बोले, सच्चों के साथ रहें, अच्छे काम करें, अपने काम से मतलब रखें, बुरी चीज़ों से और बुरे संगतों से दूर रहें। देखिए बुरे संगत में रहकर भी इंसान पे उसका छींटा आ ही जाता है, इसलिए बुरे संगतों से भी दूर रहें। मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो जिसको जब तक मैं ज़िंदा हूँ व्हाट्सअप नंबर चालू रहेगा। अगर आप उस पर सवाल करते हैं तो उसका जवाब मिलेगा। आप सवाल वॉइस मैसेज से या लिख के करें और डिटेल करें और जवाब का इंतज़ार करें। अगर जवाब का इंतज़ार करेंगे तो जवाब मिलेगा, कॉल करेंगे तो नंबर मैं ब्लॉक कर दूंगा और जल्दबाजी दिखाएंगे तब भी। इसलिए हमसे काम लेना है तो हमारे तरीके से हमसे जुड़िएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अपना सिस्टम अपना तरीका गुजरिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए आप मुझसे डायरेक्ट फ़ायदा लेने से महरूम हो जाइएगा। रही बात कि मेरे वीडियो से फ़ायदा लेने के लिए ये इल्म तो मैंने आम कर दिया है, तो जो भी सलाहियत वाला होगा इससे फ़ायदा उठाएगा, ठीक है।
अब रही बात कि अपने इल्म को अगर बढ़ाना है, अमल शुरू करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि मेरा जितना भी वीडियो है सबको देख जाइए, इत्मीनान से देखिए। उसके बाद आप एक एक करके अमल शुरू कीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि कम टाइम में ज्यादा तरक्की आप कर पाएंगे। चलिए, तो वीडियो लंबी हो रही है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और अच्छी जानकारी और अच्छे इल्म के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।